Hello students. In previous lecture we have seen how you can describe, or you can say how you can show accuracy in your results. So if you are taking lots of data, so if you want to know that whether your data is accurate or not, you have to show it in mathematical forms. And what were the mathematical form? uh, it was absolute and relative errors. Okay, in this way it is a method of expressing accuracy. Okay, you can have the lots of data and you will find out, you will calculate its absolute error and its relative error. In this way you can see, you can show how accurate your result is. Okay, and we have already also seen absolute error and relative errors, and sorry, it's a constant error and proportionate error. These are two types of errors in which are actually classified on the based on whether or not the absolute or or the constant errors, sorry, absolute, which error remains constant. Okay, so in constant error we have already seen that absolute error is constant where proportionate error actually changes. Absolute error remains constant and relative errors changes. Okay, and in proportionate error it is vice versa. So we have seen this, but the main thing is here that we actually show accuracy. This were the method to show the accuracy. Okay, but now we are showing the method to show precision. The method to show precision, whether or not your result is precise, or whether or not your result is precise. Okay, so the precision, if you want to show the precision, you have to calculate these two things. In previous case you were describing accuracy, you were describing accuracy, it was in terms of standard error or a relative error, right, or absolute error, we can say absolute error. Or but in this case what you are doing, you are showing your whether or not your result is precise. For example, average or standard deviation, these are two ways to show your result is precise or not. And what are these? Okay, we will see it. First you have to know what deviation is and why we are considering deviation. Okay, why we are considering it. So you already know, if you are taking readings, for example, you are taking readings, you are performing experiment, but in that case, in most of the cases you will not know what is the true value of the compound, of that measurement. If you don't know about the true value, you will not be able to calculate error. Why? Because what error is, you know let's just take it for example. आप ये ले लो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो वैल्यू है वो वैल्यू जो है वो 10 आता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ब्यूरेट रीडिंग 10 आता है और जो ट्रू वैल्यू है वो 14 है, मतलब 14 के आसपास रीडिंग आना चाहिए। तो अगर आपको ट्रू वैल्यू पता है, यानी वो 14 आना चाहिए लेकिन आपका नहीं आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि 14 माइनस 10 जो है ये क्या है, ये 4 का डिफरेंस है, ये उसका एरर है, ये तो नॉर्मल है, ये आप कह सकते हो। वॉट इफ़ यू डोंट नो द ट्रू वैल्यू, क्योंकि हर बार आपको पता तो नहीं होगा ना कि उसकी ट्रू वैल्यू क्या है, तो क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप एक ब्यूरेट रीडिंग ले रहे हो और उसके अंदर आपका जो रीडिंग है वो 11, 12 जो हमने एग्जाम्पल लिया था, 13, 14 और 15, ये रिज़ल्ट ये आ रहे हैं, आपके जो मेजरमेंट है वो ये आ रहे हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपको नहीं पता कि उसकी ट्रू वैल्यू क्या है, तो आप एरर कैसे फाइंड करोगे। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ पे आप अननोन जो है, अननोन कंपाउंड स्टडी कर रहे हो, वहाँ आपको उसकी ट्रू वैल्यू जो टी है वो नहीं पता होगी, क्योंकि वही तो फाइंड कर रहे हो। तो अब आप क्या करोगे, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपके एक्सपेरिमेंट में एरर क्या है। तब आपको ये चीज़ ध्यान में लेनी है
कि वो कितना डिविएट करता है, ठीक है, उसका डिविएशन क्या है। और वो ट्रू वैल्यू के बेस पर नहीं लेंगे हम, ये किसके बेस पर है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वो क्या कह रहा है कि द एरर ऑफ मेजरमेंट कैनॉट बी स्टेटेड इफ द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज नॉट नोन। अगर ट्रू वैल्यू आपको पता ही नहीं है तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि उसके अंदर एरर कितना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि ट्रू वैल्यू क्या है। तब आपको क्या करना है, इट इज़ मीनिंगफुल देन टू टेक डिफरेंस बिटवीन पर्टिकुलर मेजर्ड वैल्यू। मतलब मेजर्ड वैल्यू कौन सा है, वो ऑब्जर्व वैल्यू है जो आप ले रहे हो, आपके रीडिंग्स, ठीक है, आपकी मेजर्ड वैल्यू है, उसके अंदर के डिफरेंस देखने हैं। एंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द सीरीज ऑफ मेजरमेंट एंड दिस डिफरेंस इज कॉल्ड इट्स डेविएशन फॉर अपेरेंट एरर। मतलब आप क्या करोगे, इन शॉर्ट आप ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपको ट्रू वैल्यू नहीं पता, अगर आपको उसकी ट्रू वैल्यू नहीं पता तो आपको क्या करना है, आपको एक दूसरे, आपको रीडिंग तो पता है ना, ये आप ये अज्यूम कर लो कि आपके पास सिर्फ ये रीडिंग ही है 11, 12, 13, 14 और 15। आपको नहीं पता कि इसमें से सही क्वांटिटी क्या है या ट्रू वैल्यू क्या है, आपको कुछ नहीं पता। तो आप क्या करोगे, ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट के लिए आप क्या करोगे, इन सब के बीच का डिफरेंस ढूंढोगे। मतलब ये सारे जो रीडिंग्स है उनके बीच का जो डिफरेंस है, या फिर उनको अगर आप एक दूसरे से नेगेटिव, अगर उनका डिफरेंस लेते हो नेगेटिव करके, तो क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि ये एक दूसरे से कितना दूर है, ठीक है, ये आपको पता चलेगा। तो यानी आप बेस क्या ले रहे हो, आप वही रीडिंग को बेस ले रहे हो जो आपने ली है, क्योंकि आपके पास ट्रू वैल्यू नहीं है। अगर ये कर रहे हो तो इसको डिवाइएशन बोलते हैं और डेविएशन बोलते हैं। डेविएशन इज जनरली टेकन विदाउट रिगार्ड टू साइन। इट इज़ डिफाइंड मैथमेटिकली एज, और उसको डिफाइन कैसे करते हैं, देखो ऐसे करते हैं। ये कुछ नहीं है, ये क्या है, ये आपकी वैल्यू है जो आप ले रहे हो, और एक मीन वैल्यू है। उससे आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि मीन वैल्यू से जो है वो कितना डिफर करता है, ठीक है। जो उसका मीन ले रहे हो आप, मीन कैसे लोगे, सारे के सारे को क्या कर दो आप, उसको समराइज कर दो। उसके बाद क्या करो, उसका जितने आपके रीडिंग्स है उससे आप डिवाइड कर दो, और ये आएगा, ये मिडल वैल्यू आएगी, ये उसका क्या आएगा, मीन आएगा। तो आप मीन को ही ट्रू वैल्यू अज्यूम कर रहे हो, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मीन को ही ट्रू वैल्यू अज्यूम करके जो आपका रीडिंग आ रहा है उससे क्या कर रहे हो, उससे आप उसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर ये कर रहे हो तो यहाँ पे आप और कुछ नहीं कर रहे हो। आप एरर में क्या करते थे, आप ट्रू वैल्यू को माइनस करते थे। आप उससे क्या कर रहे हो, ट्रू वैल्यू की जगह आप यहाँ पे क्या ले रहे हो, उसका मीन ले रहे हो। जो आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं, जो आपके रीडिंग्स आ रहे हैं इतने सारे, उसका ही मीन ले रहे हो, क्योंकि आपके पास ट्रू वैल्यू नहीं है। तो अगर आप उसका मीन लेके डिफरेंस लेके कर रहे हो तो ये आपका डेविएशन आएगा, और अगर आप ट्रू वैल्यू का डिफरेंस आपके रीडिंग से लेके कर रहे हो तो वो एरर आएगा। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। अगर आपके पास जो है वो ट्रू वैल्यू है तो आप एरर निकाल सकते हो उसका, और अगर आपके पास ट्रू वैल्यू नहीं है तो आप उसका डेविएशन निकाल सकते हो, ठीक है। सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। अगर आपके पास ट्रू वैल्यू नहीं है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है वो है डिविएशन, ठीक है। डिविएशन आप तभी यूज़ कर रहे हो जब आपके पास उसकी ट्रू वैल्यू नहीं है, ठीक है। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसकी ट्रू वैल्यू जो है वो आपके पास नहीं है, तब जो आपको ऑपरेट करना है, ऑपरेशन, वो आपको डिविएशन करना है, ठीक है। और अगर है तो आप क्या करोगे, आप एरर डायरेक्टली फाइंड करोगे, ओके। और ये एक्चुअली ये हम क्यों देख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको एक्यूरेसी फाइंड करनी है, तो आपको एरर फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि आपका जो भी रिज़ल्ट आ रहा है वो कितना एक्यूरेट है। और एरर कब फाइंड कर सकते हो आप, जब आपके पास उसकी ट्रू वैल्यू हो, ठीक है।
जब अगर आपके पास उसकी ट्रू वैल्यू टी हो तभी आप वो फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ट्रू वैल्यू नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि उसकी ट्रू वैल्यू क्या है, तब आप क्या फाइंड करोगे, उसकी प्रिसीजन फाइंड करोगे। और प्रिसीजन कैसे फाइंड करोगे, वो आप ये दो ऑपरेशन करके, ये दो जो है वो देखोगे, एवरेज डिवाइएशन फाइंड करोगे और स्टैंडर्ड डिवाइएशन फाइंड करोगे। ये दोनों वेज हैं, मेथड्स हैं ये बताने के लिए टू एक्सप्रेस योर प्रिसीजन। ठीक है, आपका रिजल्ट जो है वो कितना प्रिसाइज है वो बताने के लिए एवरेज डिवाइएशन और स्टैंडर्ड डिवाइएशन का हम यूज़ करेंगे। अब वो क्या है, सबसे पहले तो एवरेज डिवाइएशन। एवरेज डेविएशन जो है वो आपको ऐसे लेना है, एवरेज डेविएशन जिसको हम AD शॉर्ट में लिख सकते हैं, और द मीन डिविएशन भी उसको बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी आपको पता चलेगा। इज़ द एवरेज ऑफ इंडिविजुअल डिविएशन। यहाँ देखो इसका इक्वेशन भी दिया हुआ है। जो एवरेज डिविएशन है उसका मीन निकालना है। अगर ये ठीक से नहीं दिख रहा तो ये मैं आपको बता दूँ, एक मिनट। ये जो है ये N1 N2, ये जो है वो ये D1 D2 है। ये क्या लिखा उसमें, D1 + D2 + D3 ये अपॉन उसका n जो है वो हम ले रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये क्या किसका मीन निकाल रहे हैं। सबसे पहले तो आपको डिविएशन पता होना चाहिए। अब वो कैसे निकालोगे, एक एक का डिविएशन पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करोगे, फॉर एग्जांपल आपका जो रीडिंग है वो यहाँ से आ रहा है 11, 12, 13 और यहाँ पे 14 ले लेते हैं। ठीक है, ये आपके रीडिंग्स हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपको ट्रू वैल्यू नहीं पता, आपको पता ही नहीं कि उसकी एक्यूरेट वैल्यू क्या है। तो आप क्या करोगे, आप इन सब का क्या लोगे, मीन ले लोगे। ठीक है, मीन अब ये 4 नहीं हम 5 लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 11, 12, 13, 14 और ये 15, क्योंकि ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा समझने में, इसलिए तो हम ये क्या कर रहे हैं, ये 5 रीडिंग ले रहे हैं। अब उसका मीन लेना है, क्योंकि आपके पास एक्यूरेट वैल्यू नहीं है तो आप उसका मीन लोगे, और अगर उसकी मीन वैल्यू लोगे तो वो कितनी आएगी, 13। कितनी आएगी, 13। आप करके देखो, 11 + 12 + 13 + 14 + 15/5 ये करके देखो। ठीक है, क्योंकि ये बीच में ही है तो मीन यही आएगा। ठीक है, क्योंकि और नंबर भी है और सबके बीच में डिफरेंस भी उतना ही है। तो अगर आपको मीन फाइंड करना है सबसे पहले, ठीक है, तो अगर आप मीन फाइंड कर लेते हो तो अब आपको क्या करना है, उस मीन वैल्यू से एक एक वैल्यू जो है वो आपको माइनस करनी है। फॉर एग्जांपल ये है 13, आप एग्जांपल के तौर पर इसका मीन वैल्यू कितना आएगा, 13। अब 13 - 11 ये कितना आएगा, 2। तो आपको यहाँ कितना लिखना है, 2। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद जो है वो आपका 12। ठीक है, उसके बाद क्या है, 12। तो आप 13 - 12 करो तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करो, 13 - 13 लिखो तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। वैसे ही क्या करो, एक मीन वैल्यू फाइंड कर लो, कोई भी जो एक मीन वैल्यू आएगा वो फाइंड कर लो और उस मीन वैल्यू का डिफरेंस ले लो। एरर में क्या करते थे, ट्रू वैल्यू का डिफरेंस लेते थे। यहाँ आपको मीन वैल्यू जो है वो उसको डिफरेंस उसका डिफरेंस लेना है, जो आपकी वैल्यूज़ जो आप लिख रहे हो उसका, और जो भी वैल्यूज़ आए उसको आप यहाँ पे लिख लो। फॉर एग्जांपल इस कॉलम में आप लिख रहे हो, और जो 3 था, 2 था, 1 था, 0 था, उसके बाद -1 और -2। नॉर्मली जो है वो माइनस में हम नहीं लेते, उसको प्लस ही ले रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस ही चाहिए। अब पॉजिटिव या नेगेटिव हम वहाँ नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आप ले रहे हो ये सारे के सारे क्या है पता है, ये है, यही है ये N1 है जो हमने देखा, N2, N3 ये डिफरेंस है जो हमने इस लास्ट कॉलम में हमने बनाए थे। वो क्या करना है उस, अब ये जो सारे के सारे जो आ गए, अब ये सारे के सारे आ गए, ये क्या है पता है, ये आपकी डिविएशन है, यानी 2, 1, 0, 1, 2 ये डिविएशन है। अब इन डिविएशन का भी आपको क्या करना है, मीन लेना है, और जो ये डिविएशन का जो मीन आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, आप मीन ले रहे हो मतलब क्या निकाल रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो ना, तो वो एवरेज डिविएशन आएगा। अब ये कैसे आएगा, इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हम आगे देखेंगे, ये सारी चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं उसके साथ। ठीक है, आपके पास जब ट्रू वैल्यू नहीं होगा तो आप क्या करोगे, आप प्रिसीजन फाइंड करोगे, और प्रिसीजन में दो है, एक तो एवरेज प्रिसीजन है, ये जो है एवरेज प्रिसीजन है, या फिर आप
सॉरी एवरेज डेविएशन है या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन है, इससे आप प्रिसीजन फाइंड कर सकते हो। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे उसका जो है मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ वो सारी चीज़ें जो है मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ उसके कैलकुलेशन भी हम आगे देखेंगे, वो बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ, इट इज़ डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट of the mean of the square of individual deviation। मैथमेटिकली ये उसका जो है डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन नहीं दिया हुआ, वो हम आगे देखेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इंडिविजुअल डिवाइएशन। अगर आपको यहाँ पे इंडिविजुअल जो डिवाइएशन है वो फाइंड करना है, जो हमने यहाँ पे इस कॉलम में किया था लास्ट में, और उसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, और उसके बाद जो है उसका मीन निकाल के उसका स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करना है। यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इंडिविजुअल डिवाइएशन, उसका जो स्क्वायर का मीन निकालने के बाद आपको ये करना है, उसका एक पूरा का पूरा इक्वेशन है जो हम आगे देखेंगे, वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब वेरिएंस, ये सारे के सारे इक्वेशन है, अभी हम कहाँ एंटर कर रहे हैं, अभी हम उसके मैथमेटिक्स में एंटर कर रहे हैं। मतलब ये सारी ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये आपको अपने डेटा के ऊपर ऑपरेट करने हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि आपके डेटा कितने एक्यूरेट हैं या कितने प्रिसाइज हैं, या फिर आपको उसको लेना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अब जो लास्ट है वो है वेरिएंस, ठीक है, ये भी टर्म है। अब वेरिएंस क्या है, वो स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिवाइएशन, उसको वेरिएंस बोलते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवाइएशन फाइंड करते हो, नॉर्मली उसको सिग्मा कहा जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिवाइएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। वो अगर आप फाइंड कर लोगे, अगर उसका स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, या वेरिएंस को एस दिया हुआ है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवाइएशन को एस भी बोल सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकल अगर आप लिख रहे हो तो उसको सिग्मा भी बोल सकते हो। तो इसका अगर आप स्क्वायर कर दोगे या इसका क्या करोगे, स्क्वायर स्टैंडर्ड डिवाइएशन का, तो जो आएगा वो आपका वेरिएंस है। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने कुछ टर्म्स देखे। सबसे पहले तो कुछ टर्म्स देखे, मीन, मीडियन, मोड, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने क्या देखी कि आप प्रिसीजन है, अगर आप एक्यूरेसी है तो एक्यूरेसी को आप एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर जो है फाइंड आउट करके बता सकते हो कि आपका रिजल्ट कितना एक्यूरेट है। या अगर आपको प्रिसीजन फाइंड करना है तो आप डिविएशन से निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको प्रिसीजन फाइंड करना है तो आप डिविएशन, और वहाँ पे भी आपको 2 टाइप्स ऑफ डिविएशन को देखना है, एवरेज डिविएशन निकाल सकते हो और स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हो, और इसके ऊपर से आप वेरिएंस भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारे आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो आपको आपके एनालिटिकल डेटा के ऊपर ऑपरेट करने हैं, ठीक है। और अपकमिंग लेक्चर्स में जो है वो हम अलग अलग टाइप के टेस्ट करके देखेंगे हमारे डेटा के ऊपर, मैथमेटिकल टेस्ट करके देखेंगे हमारे डेटा के ऊपर, और देखेंगे कि कौन सा वैल्यू आप ले सकते हो, कौन सा नहीं ले सकते हो, क्या करोगे अगर आपके पास कोई डेटा है तो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही।